तो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। और हम बेटे मीथेन की बात करें, वी टॉक ऑफ मीथेन, वी नो दैट देयर इज small electronegativity difference between carbon and hydrogen, small electronegativity difference, and hence the hydrogen atoms of methane practically don't show any acidic nature, don't show any acidic nature. बेटे am I audible? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको बच्चे? Am I audible? मैं जिस साउंड में बोल रहा हूँ लाउडनेस से, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है बच्चे? थैंक यू। और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है आपको? व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन? ओके, थैंक यू बच्चे। मैं बात कर रहा था कि दिस इज द मीथेन मॉलिक्यूल and here the electronegativity difference between carbon and hydrogen is very small, and hence the hydrogen atoms of the methane hardly show any acidic nature. Practically they don't exhibit acidic character. What if two of the hydrogen atoms are replaced by some electron withdrawing groups? Electron withdrawing groups. अगर हम मीथेन के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दें by some electron withdrawing groups, what happens? The rest of the two hydrogen atoms of methane, that is these two hydrogen atoms, they become acidic in nature. They become acidic in nature. Why? सिंपल सी बात है बच्चे, इनका जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है इन ग्रुप का, वो कार्बन के ऊपर एक्सर्ट होगा और कार्बन अल्टीमेटली एक्सर्ट करेगा किस पे? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट of these electron withdrawing groups will be exerted on carbon, तो आप माइनस आई इफेक्ट भी कह सकते हैं, and the carbon will transfer this effect to hydrogen, that is कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन से करेगा. So because of this, these hydrogen atoms of the compound become acidic in nature. Acidic. Now CH2 is called as methylene. That is why we call them active methylene compounds. Active methylene compounds हम किसको कहेंगे बच्चे? Active methylene compounds हम उसको कहेंगे में मिथिलीन ग्रुप के साथ दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हो. Two electron withdrawing groups are attached. जिसमें एक्टिव मिथिलीन के साथ टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होंगे बच्चे? अटैच हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऐसे कुछ कंपाउंड्स की जिनकी हमने बात की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स का अटैचमेंट अगर हम कर दें, ये देखिए these are the electron withdrawing groups जिनकी मैं बात कर रहा था. These are the electron withdrawing groups. Sorry. These are the electron withdrawing groups. ये बच्चे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इलुस्ट्रेट करता हूं, जैसे मिथिलीन ग्रुप, इसके साथ में एसिटाइल ग्रुप लगा. These two hydrogen atoms become active and this compound will be called as active methylene compound.
because of the active nature of these two hydrogen atoms. These two hydrogen atoms will now exhibit acidic nature. ये exhibit करेंगे बच्चे क्या? Acidic nature. Similarly अगर हम बात करें इसकी, इस कंपाउंड की, it is also electron withdrawing group. किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो बीच में, वो चैट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कोई बच्चा कहेगा ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैसे है ये ग्रुप, अगर किसी को नहीं पता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है बच्चे। इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन देयर इज ए पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, it will be easily withdrawn by the oxygen, thus giving partial positive charge to carbon. That is, it makes this carbon electronically deficient. जब कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा तो ये क्या करेगा? ये बच्चे एक्सर्ट करेगा माइनस आई इफेक्ट, ये इधर भी करेगा इधर भी करेगा, ठीक है ना? आप कहेंगे ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक होना चाहिए, होगा, माइनर होगा, बट इससे ज्यादा ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट दो साइड से लग रहा है। इस मिथाइल हाइड्रोजन के ऊपर from two sides we have attached two electron withdrawing groups. Same situation is here. यहाँ भी यही situation है। This is electron withdrawing group. They exert minus I effect on the carbon, and carbon exert on hydrogen, and as a result, these hydrogen atoms become acidic in nature. Similarly, this is this compound, cyanoethyl acetate, जिसको हम कहते हैं। इसमें हमने एक साइड साइनो ग्रुप लगाया है बच्चे, एक साइड एस्टर ग्रुप लगाया है। Both are minus I effect groups. They exert minus I effect on the carbon, and carbon exert on hydrogen, and as a result, hydrogen acquire acidic nature. That is active methylene group बन गया ये। Similarly, नाइट्रो ग्रुप बचे। नाइट्रो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है। इस कंपाउंड पर्सन, तो ये मैं बात कर रहा था आपसे कि these are the groups which can be attached to the what? Active methylene, that is CH2 group, or CH2 group to make it active methylene. ये वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जिनको हम CH2 के साथ अगर अटैच कर दें, CH2 becomes active methylene. CH2 को हम मिथलीन कहते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, इसमें देखिए मैंने क्या किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चे। व्हाट आई हैव डन, क्या किया है बच्चे? इसमें मैंने वन साइड पे एसिटाइल ग्रुप लगाया है ये वाला, और एक साइड पे लगाया है ये वाला COOH5। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3CO, सॉरी H लगाना भूल गया मैं, CH2COOC2H5। What is this compound? This is ethyl acetoacetate. एसीटेट किसको कहते हैं बच्चे आप? CH3CO। दिस इज एसीटेट, ये आपको पता है, ठीक है। ये ग्रुप किसको आप क्या कहते हैं? इथाइल। ये वाला हिस्सा यहाँ पे देखें एसीटेट, ये इथाइल है, इथाइल। ये ग्रुप क्या है बच्चे? एसीटो ग्रुप है। इसका नाम, कॉमन नेम जो है, IUPAC नेम तो आपको आएगा, नंबरिंग से आप कर लेंगे। इसका कॉमन, सम ऑफ द कंपाउंड्स आर बेटर नोन बाय देयर कॉमन नेम। दिस कंपाउंड इज इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल एसीटोएसीटेट। आपके सिलेबस में इसकी प्रेपरेशन है, लीजन कंडेंसेशन, आपके सिलेबस में ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो दो हैं, टू है, एंड बोथ आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। वन इज एसिटाइल, वन इज एस्टर। ये था। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस की गई है, alkyl hydrogen atoms bonded to a carbon atom in alpha position relative to carbonyl group display unusual acidic nature. नॉर्मल जो जैसे मीथेन है, नॉर्मल जो pKa वैल्यू होता है, व्हाट इज pKa वैल्यू? व्हाट इज pKa वैल्यू? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ K। बच्चे आपको कंसेप्ट पता होगा
हायर द pKa, कोई बच्चा बताएगा मुझे चैट सेक्शन का इस्तेमाल करके, इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा बच्चे। हायर द pKa, लेसर द एसिडिक नेचर और मोर द एसिडिक नेचर। शाबाश, आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं, कंप्लीट करिए। हायर द pKa, लेसर द एसिडिक नेचर और मोर द एसिडिक नेचर। शाबाश, लेसर, वेरी गुड। बच्चे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी जैसे हिमांशी श्रीवास्तव यहाँ पे मुझे दिख रही है, इसने अपना रोल नंबर फीड नहीं किया है। आपने जब भी मेरी क्लास में एंटर करना है बच्चे, अपने प्रोफाइल को एडिट कर लेना है, अपना रोल नंबर पहले, नाम बाद, फर्स्ट योर रोल नंबर एंड देन योर नेम, एक सीक्वेंस में रखिए। उससे क्या होगा, आपका कितना रोल नंबर है हिमांशी श्रीवास्तव, व्हाट इज योर रोल नंबर, क्लास रोल नंबर। वेरी गुड। तो बच्चे देखिए, दो कंसेप्ट है, एक है के, के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ आयंस, आयंस का प्रोडक्ट वो भी है डिवाइडेड बाय द अनडिसोसिएटेड एसिड। हायर द के, हायर द एसिडिक नेचर, बट हायर द पीके, लेसर द एसिडिक नेचर। जैसे बच्चे ने बताया ओवर 28 महक वर्मा, वेरी गुड, शाबाश। महक आपने क्या करना है, और हिमांशी आपने क्या करना है बच्चे, और भी कोई स्टूडेंट जो होगा, नवलीन कौर, वेरी गुड। आपने क्या करना है, अपना जो प्रोफाइल है उसको एडिट कर लेना है, पहले रोल नंबर, फिर अपना name। अपना जो आपने वाइज ऐप में एंट्री की ना, वहां पे अपना प्रोफाइल एडिट कर लीजिए, पहले रोल नंबर, फिर नहीं, यहाँ तो आप मुझे बता रहे हैं, मैं यहाँ नहीं कह रहा आपको बताने के लिए अभी, मैं ऑटोमेटिकली मुझे पता चल, जब आप मेरा कोई भी रिप्लाई देंगे ना बच्चे, जैसे आयुष महाजन मुझे बता रहा है कि रोल नंबर 54 है, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ बच्चों ने एंट्री की है ना, अपना रोल नंबर लिखा हुआ है साथ में, मैं देख रहा था अभी, जैसे देखिए ये है मनीष कुमार, इसने अपना रोल नंबर लिखा हुआ है 30, नीतीश कुमार ने नहीं लिखा है, अंशु वाले ने लिखा हुआ है, चाहे बाद में लिखा है ना, तानिया शर्मा रोल नंबर 37 लिखा हुआ है। इस तरीके से बच्चे अपना रोल नंबर आपने साथ में लिखना है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आज हमारा पहला लेक्चर है, अगर किसी ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा आज की डेट में, कोई बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम कल क्लास लगाएंगे, सभी बच्चों की जो रोल नंबर्स है वो होने चाहिए। ठीक है बच्चे, ये मैं बता रहा था बच्चे आपको कि हायर द पीके, पीके इज नेगेटिव लॉग आपके, हायर द के 57 was very good, शाबाश, 25, वेरी गुड। तो हायर द पीके, लेसर द एसिडिक नेचर। तो देखिए पीके वैल्यू नॉर्मल हाइड्रोजन की कितनी होती है बच्चे, 40 to 50, लेकिन जैसे ही इसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी, सम एग्जांपल्स आई डिस्कस्ड, जैसे ये एग्जांपल मैंने दी अभी आपको, इथाइल एसीटोएसीटेट की, द एसिडिक नेचर ऑफ दिस हाइड्रोजन increases substantially, it shows unusual acidic nature। इसका जो pKa है बच्चे, इट इज इन द रेंज ऑफ 19 to 20, देखिए कितना फर्क पड़ा, अर्लियर इट वाज 40 to 50, नाउ ड्यू टू introduction of these two electron withdrawing groups, pKa value changed to 90 to 20, that is unusual acidic nature। इसको हम बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं दो बेसिस पे। वाई, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वाई द मिथिलीन हाइड्रोजन आर एक्टिव or show acidic nature when we have two electron withdrawing groups attached to the methylene group। जैसे ये मैंने एग्जांपल डिस्कस की, ये एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं, एक रीजन मैंने आपको बता दिया, वन रीजन तो बता दिया मैंने आपको बच्चे, व्हाट इज द रीजन, presence of electron withdrawing groups। Second reason is
व्हेन इट लूजेस H पॉजिटिव, सपोज हम बेस का इस्तेमाल करेंगे तो बेस इसके H को निकालेगा, वाई, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। जब ये H को निकालेगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी रिटेन्ड बाय कार्बन एंड वी विल गेट कार्बन आयन। हमें ये कार्बन आयन मिलेगा, विल गेट दिस कार्बन आयन, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल ना हो तो ये एकदम से वापस जाने की कोशिश करेगा बच्चे, और इसके एसिडिक नेचर को कम करेगा। अगर ये कार्बन आयन आपका सपोज स्टेबल ना हो, हाईली अनस्टेबल हो, इफ दिस कार्बन आयन इज हाईली अनस्टेबल, व्हाट विल हैपन, ये टिकेगा ही नहीं, एकदम से वापस जाएगा। यानी कि एकदम से वापस जाने का मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं कि इसकी एसिडिक नेचर है वो नहीं होगी। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या ये कार्बन आयन स्टेबल है। yes it is stable because of reagents। ये देखिए, it is reagents stabilized not from one side but from two sides। इस साइड से भी है बच्चे, दोनों साइड हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं। this carbon ion is reagents stabilized and hence the probability of its formation increase। ये बनेगा बच्चे, तभी तो H पॉजिटिव निकलेगा। अगर ये बनेगा ही नहीं तो H पॉजिटिव कहां से निकलेगा। Its formation, easy formation, why it is being easily formed, because it is resonance stabilized। क्योंकि ये resonance stabilized due to electron withdrawing effect of the two electron withdrawing groups as well as due to stabilization of the carbon ion, due to stabilization of the carbon ion formed due to resonance। क्या बच्चे आपको, चलिए बच्चे चैट सेक्शन का इस्तेमाल करके बताइए कि अभी तक जो मैंने बताया वो आपको अंडरस्टैंड हुआ। शाबाश, अभी तक जो बताया मैंने आपको वो आपको अंडरस्टैंड हुआ। ये जो मैंने बताया आपको, ये दो कारण है इसके एसिडिक नेचर शो करने। थैंक यू। मुझे डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये जो मनीष कुमार है, इसने रोल नंबर तो अपना लिखा है पर बड़े अजीबोगरीब तरीके से लिखा है, ब्रैकेट डाल के। ये नया ही वो यूज किया, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बच्चे मैंने आपको बताया, अगर आपको ये 34 देखो, 34 सुमित को अपना रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर 90 रोल नंबर लिखा हुआ है। शाबाश, वेरी गुड। आपने रोल नंबर लिखा है बच्चे, यहाँ से दिख जाता है मुझे। तबलीन को रोल नंबर 75, वेरी गुड। ठीक है, शर्मा लिखा हुआ है। कोशिश करिए ऐसे रोल नंबर लिखते ना, आर कैपिटल डॉट नंबर करके पहले लिख लीजिए, बाद में अपना नाम लिख लीजिए, तो मुझे आइडेंटिफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। शाबाश। तो मैं ये बात कर रहा था बच्चे कि जो आपका एसिडिक नेचर है कंपाउंड का, सारी इसके मिथिलीन हाइड्रोजन्स का, उसके दो कारण है। एक हो गया मिथिलीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो इसके हाइड्रोजन को एसिडिक नेचर दे रहे हैं। दूसरा कारण है कि जो कार्बन आयन बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर बच्चे अनस्टेबल होगा वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर H पॉजिटिव कहां से निकलेगा। H पॉजिटिव निकले तो हम कहेंगे एसिडिक नेचर। प्रोडक्ट भी स्टेबल है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट इज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय राइट। प्रोडक्ट क्या है बच्चे, इट इज कार्बन, इट इज कार्बन। ये जो आज का जो टॉपिक है, मैंने बच्चे आपके उसमें भी शेयर किया हुआ है, ये इतना सा पार्ट गूगल क्लासरूम में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बुक रखिए, पर चूंकि कोरोना चल रहा है, अब लॉकडाउन है, जो आपके बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसलिए मैं आपको जितना भी कंटेंट है मेरे पास वो आपको गूगल क्लासरूम में शेयर करता रहूँ। तो ये बच्चे देखें यहाँ पे
दिखाया हुआ है, यही चीज दिखाई है। ये देखें, मैंने पूरा कंपाउंड लिखा था, यहाँ पे पूरा कंपाउंड ना लिख के एक पार्ट लिखा गया है। देखिए मैंने क्या कंपाउंड लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा ये, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे इसको उठाया है यहाँ से, ये वाला, दिस इज दिस कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन दिखाया है, दूसरा शो नहीं किया है, वो यहाँ भी हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप ये वाला ग्रुप भी शो नहीं किया है, और इसका सिर्फ कार्बोनाइल शो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। हमने बेसिक चीज दिखानी थी कि रायोनेट्स को, ये देखिए बेस का इस्तेमाल किया बच्चे, बेस ने देखें इस एसडी हाइड्रोजन को निकाला, इसका पीके देखें कितना 90 टू 20 के रेंज में है, एसडी हाइड्रोजन को निकाला, ये देखें बच्चे ये आ गया, वी गेट कार्बन आयन, ठीक है। और ये जो आपका कार्बन आयन है, इट इज रेजोनेंस स्टेबल, ये कार्बन आयन, इसका रेजोनेंस दिखाया है यहाँ पे बच्चे, ऐसे ऐसे, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन, ठीक है। दैट इज, ये इसकी अगर देखा जाए, अगर सपोज इसको आप एसिडिक नेचर देते हैं, एच पॉजिटिव डालते हैं यहाँ पे, तो ये बच्चे देखें, ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इसकी इनोड, एक किस्म से आप कह सकते हैं कीटो इनोड टाटोमेरिक टाइप का हो गया। तो ये एसिडिक नेचर जो इसका है, वो इसकी वजह से है, ये आपको दिखाने की है जरूरत नहीं है इतने हिस्से को, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, कि जो कार्बन आयन हमारा बना, द कार्बन आयन फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आपको कॉम्प्लिकेसी आ रही है, द बेस विच वी आर यूजिंग, तो बेस ने इसको निकाला बच्चे, ये बन गया कार्बन आयन हमारा, सी एच, और ये जो आपका कार्बन आयन है, इट इज रेजोनेंस स्टेबल, ये रेजोनेंस स्टेबल, प्रोडक्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट इज व्हाई these compounds show acidic nature, that is the methylene group hydrogen atoms are acidic in, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं बच्चे वो क्या है, एसिडिक है बच्चे। तो उसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, लेकिन आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। आप एक काम करिए, अभी 10 मिनट हमारे पास है, 10 मिनट से ऊपर भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं अभी आपको आपकी क्लास में एक छोटी सी असाइनमेंट डाल देता हूँ, स्मॉल असाइनमेंट। आपने ये जो राइनर स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको ड्रा करके दिखा, ये वाला पार्ट अपने हाथों से लिख के बना, ये वाला पार्ट इतना साइज अपने हाथों से आपने लिख के अपलोड करना। अभी मैं यहाँ पे आपको असाइनमेंट डाल रहा हूँ, इसी में बाइजैब में आप जाइएगा, टेस्ट में, टेस्ट में डाल रहा हूँ मैं, ये मैं ऐड टेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने ही, थोड़ी देर में आपको टेस्ट दिखने लगेगा। टेस्ट नेम मैंने डाल दिया बच्चे, राइट रेजोनेंस ऑफ कार्बन आयन rate reaction of active methylene compound, active methylene compound with base and right resonance। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, ऑफ कार्बन आयन फॉर्म, चेक करिए अपनी बाइज ऐप में, एक मिनट बाद।
सेटिंग चेंज हुई है अब